السلام علیکم دوستو، آج میں ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو ایک ایسے ورسٹائل انسان کا سٹائل رکھتے تھے جو حقیقتاً جیو اور جینے دو کے اصولوں پر کاربند تھے۔ اسے ہر اچھی چیز اور خوبصورت بات اچھی لگتی تھی۔ وہ آج کے حکمرانوں کی طرح نہیں تھے جنہیں اپنی کرسی بہت عزیز ہوتی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو حکمرانوں پر میڈیا پر اور نہ جانے کیسے کیسے جلسوں، تقریروں اور پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے مباحثوں میں کیسی کیسی گالیاں دی جاتی ہیں اور ان کے کیسے کیسے اسکینڈل منظر عام پر آتے ہیں، کیا کیا کرپشن ان کے اوپر ثابت ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی سیٹ سے دستبرداری قبول کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن جس حکمران کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے اپنے حکومت کے دور میں بہترین پاکستان کو چلایا۔ جب وہ آئے تو پاکستان پر کوئی قرضہ نہیں تھا، اور جب وہ گئے ان کے پروجیکٹس کی وجہ سے کوئی قرضہ نہیں تھا۔ ان جیسا حکمران آج تک نہ ابھی آیا ہے اور لگتا نہیں ہے کہ کوئی آئندہ بھی پاکستان کی طریقے میں آئے گا۔ لیکن اس حکمران کو جب عوام نے غلط لفظ سے پکارا، ان کے نام کے ساتھ ایسا غلط لفظ لگا دیا، تو انہوں نے فوراً اپنی کرسی چھوڑ دی اور اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے صدر یعنی صدر محمد ایوب خان کی۔ صدر محمد ایوب خان 24 مئی 1907 کو ہری پور ہزارہ کے قریب ایک گاؤں ریحانہ میں ایک ہند کو پشتو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے اپنے والد میر داد خان کی دوسری بیوی کے پہلے وہ بیٹے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے لیے آپ کا نام سرائے صالح کے ایک سکول میں داخل کروایا گیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک قریبی گاؤں کاہل پائی میں بھی تعلیم حاصل کی جو ان کے گھر سے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ کھچر کے ذریعے سکول جایا کرتے تھے۔ آپ نے 1922 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا، لیکن تعلیم مکمل نہ کی، کیونکہ اسی دوران میں آپ نے رائل اکیڈمی آف سینٹ ہیسٹنز کو قبول کر لیا۔ آپ نے آرمی کی ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسری جنگ عظیم میں بطور کپتان حصہ لیا، اور پھر انہیں ترقی دے کے میجر بنا دیا گیا اور برما کے محاذ پر انہیں تعینات کر دیا گیا۔ پاکستان بننے کے بعد آپ نے پاکستان آرمی جوائن کر لی، اور اس وقت وہ آرمیز کے سینئر آفیسرز میں 10ویں نمبر پر تھے، اور پھر 1948 میں مشرقی پاکستان میں وہ پاکستانی فوج کے سربراہ بھی رہے۔ 1949 میں مشرقی پاکستان سے جب وہ واپس آئے تو آپ کو ڈپٹی کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا۔ آپ محمد علی بوگرا کے دور میں بطور وزیر دفاع بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ جناب سکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 میں مارشل لا لگایا تو آپ کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا۔ یہ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ کسی فوجی کو براہ راست سیاست میں لایا گیا۔ سکندر مرزا کے معزول ہونے کے بعد آپ پاکستان کے صدر بنے اور عوام نے انہیں خوش آمدید کہا۔ آپ نے 1961 میں پاکستان کا پہلا آئین بنوایا جو کہ صدارتی طرز کا آئین تھا۔ اب ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں صدر ایوب خان کی زندگی کی۔ 1962 میں آپ نے الیکشن کروائے اور آپ کے حریف میں مادر ملت فاطمہ جناح تھیں، جو کہ قائد اعظم کی بے پناہ مقبولیت کے باوجود ہار گئیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ مادر ملت کا ساتھ دینے والی سب سے بڑی اس وقت کی جماعت اسلامی بعد میں عورت کی حکمرانی کے خلاف بولنے لگ گئی۔ ایوب خان جب الیکشن جیت گئے تو وہ الیکشن بھی مشکوک ہو گیا۔ ایوب خان وطن پرست شخص تھے، لیکن ساتھ ہی موجودہ حالات پر گہری نظر رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ محترمہ فاطمہ جناح بہت اچھی ہیں، لیکن ان کے قطعی وہ مخالف نہیں تھے اور نہ ہی ان کی عظمت کے انکاری تھے، لیکن وہ یہ جانتے تھے کہ وہ ایک عورت ہیں، اور ان کے بھائی یعنی قائد اعظم کے انتقال کے بعد اب ان میں وہ حوصلہ نہیں رہا جو بھائی کے ہوتے ہوئے وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ پھر محترمہ کی شخصیت کو اس وقت کے لوگ ہائی جیک کر کے ان کو سامنے لانا چاہتے تھے اور اپنے مقاصد میں کامیاب ہونا چاہتے تھے، کیونکہ وہ محترمہ کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانا چاہتے تھے۔ ایوب خان اس بندوق کے مخالف تھے، نہ کہ اس کندھے کے۔ یاد رہے یہ ایوب خان ہی تھے جن کے دور حکومت میں پہلی بار اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بنایا گیا، اور فاطمہ جناح پہلی اپوزیشن لیڈر اور پہلی اور آخری آزاد اپوزیشن لیڈر منتخب ہوئی۔ وہ چاہتے تو کسی کو بھی ڈمی اپوزیشن لیڈر بنا دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، جیسا کہ بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارے حکمران انہوں نے ڈمی اپوزیشن لیڈر اپنے مخالف میں کھڑے کیے۔ یاد رہے صدر ایوب خان اکتوبر 1998 سے لے کے مارچ 1969 تک ملک کے سربراہ رہے۔ ملک میں جب بھی ترقیاتی کاموں کی تاریخ لکھیں گے، ہمیں ایوب خان کی خدمات کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں بجلی ہو تو وہ بھی ڈیم ایوب خان کے دور میں بنے، اگر گیس کا معاملہ ہو تو اس وقت جو ویل یا کنویں بنائے گئے وہ بھی ایوب خان کے دور میں بنے، سڑکیں ہوں تو وہ بھی اس دور میں ایوب خان کے دور میں ہی بنی،
पुल बड़े बड़े तमीर हुए, डैम्स बड़े बड़े बने, दरिया और नहरें उनको सही तरीके से हमवार किया गया। रेलवे का निज़ाम भी तरक्की में था, PIA भी अरूज पर थी, तलीमी निज़ाम भी बहुत अच्छा था, टेलीफोन और टेलीविज़न का भी निज़ाम उनके दौर में बहुत ज़्यादा फला फूला। इसलिए अवाम आज भी अयूब खान की खिदमत और विजन को सलाम पेश करती है। गौहर अयूब फील्ड मार्शल अयूब खान के साहबजादे हैं। ये फौज में कैप्टन थे। अयूब खान के हुक्म पर गौहर अयूब को सदर का ADC बना दिया गया था। ये 3 साल तक सदर के ADC रहे। गौहर अयूब ने बाद अज़ां फ़ौज से इस्तीफ़ा दे दिया था और कारोबार शुरू कर दिया और उसके साथ साथ वो सियासत में आगे थे। अगर अयूब खान की ज़िंदगी के वाक़यात को मुलाज़ा की करें और उसके साथ साथ बाद में मौजूदा हुक्मरानों की ज़ात देखें तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होगा। मसलन अयूब खान ने जब सिकंदर मिर्ज़ा को मज़ूल किया और वो लंदन चले गए तो उनकी बेगम असफ़ानी ने सिकंदर मिर्ज़ा और नहीद मिर्ज़ा को रुखसत करने के लिए एयरपोर्ट पर जाने की इजाज़त मांगी। अयूब खान ने ना सिर्फ उन्हें इजाज़त दी बल्कि उन्हें ये पेशकश की कि अगर आप उनके साथ लंदन जाना चाहती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अयूब खान ने सदर सिकंदर मिर्ज़ा को मज़ूल तो किया लेकिन उसके साथ साथ उनकी 2 पेंशनें स्टार्ट कर दी। एक पेंशन जो थी उनकी मुलाजमत की थी और दूसरी उनकी एज ए सदारत पेंशन शुरू हो गई। अयूब खान जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा की कबीना के किसी वज़ीर को बरतरफ नहीं किया। पुरानी कबीना नए सदर के साथ काम करती रही और जहाँ तक कि साबिक़ सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी, ADC और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बरकरार रहे। इवन के अवान सदर का बवर्ची तक नौकरी पर कायम रहा। आपको ये बात सुनकर शायद रोना आ जाए, जब अयूब खान सदारती महल में रहने लगे तो उस वक़्त सिकंदर मिर्ज़ा के बेड पर ही सोते थे। सिकंदर मिर्ज़ा जो कि वो छोटे कद के थे जबकि अयूब खान माशाल्लाह लंबे कद के थे। अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा के बेड पर सोने को ही तरजीह दी, जबकि वो चाहते तो एक नया बेड ले सकते थे जो कि उनकी हाइट के मुताबिक था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने 2 कुशन स्टूल लगाए और वो उस छोटे बेड पर सोते रहे। और कल ही एक मैं वीडियो देख रहा था, आजकल जो देखने में आया, वज़ीर आला हाउस में जो टॉयलेट हैं उनके अंदर गोल्ड प्लेटेड किए गए हैं और पानी के नल को सोने के पानी से गोल्ड प्लेटेड किया गया है। अयूब खान के अगर खाने की बात करें तो वो सादा खाना खाते थे। उन्होंने कभी किसी ख़ास डिश की फरमाइश नहीं की थी। वो गिलास में सिर्फ उतना पानी ही डालते थे जितना उन्होंने पीना होता था। वो रात को उठकर ऐवान सदर की गैर ज़रूरी बत्तियां बुझाते थे। वो जनरल थे तो साइकिल पर दफ्तर चले जाते थे। सदर बने तो रेल के ज़रिए सफ़र करने को वो तरजीह देते थे। पूरे ओहदा सदारत में वो पुरानी कार इस्तेमाल करते थे। स्टाफ को नई कार उन्होंने ख़रीदने के लिए नहीं कहा था। वो रात को मरी रोड पर ड्राइविंग करते थे। रास्ते में कोई बूढ़ा नज़र आ जाता तो उसे स्टाफ कार में बैठा लेते थे। वो ज़रूरत की ही चीज़ सिर्फ खरीदते थे। उनके बेटे गौहर अयूब अपनी अहलिया के साथ ऐवान सदर जाते तो सदर अपने बेटे और बहू को खाना खिलाते, लेकिन खाने के बाद डिनर का बिल आता तो वो बेटा और बहू को इस बिल को अदा करने को कहते। और इसके साथ साथ सदर भी अपने ऐवान सदर में अपने खाने, चाय और मशरूबात का बिल खुद अदा करते थे। सदर अयूब खान का गांव रिहाना था। ये गांव हरीपुर के मुजाफात में वाक़या था। सदर ने वहां अपना ज़ाती घर तमीर कराया था, लेकिन घर में पानी का कनेक्शन तक नहीं था। घर के लिए पानी गद्दों पर लाद कर लाया जाता था। रिहाना के घर में सदर अयूब के इंतकाल तक टेलीफोन नहीं था। सदर कभी हेलीकॉप्टर पर गांव नहीं गए थे। जब अयूब खान इंतकाल कर गए तो 10 जनरल 2 हेलीकॉप्टरों पर रिहाना पहुंचे तो गांव के लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार हेलीकॉप्टर देखा था। वो अपनी टोपियां कैप मेकर को देते थे जब वो पुरानी हो जाती थी और उनका स्टाइल तब्दील करवा के उसके बाद वो ज़ाती तौर पर उनको पहनते रहते थे। अगर पेन की निब टूट जाती थी तो वो नई निब लगवा लेते थे, लेकिन नया पेन खरीदने को तरजीह नहीं देते थे। अयूब खान ने अपने दोनों साहबजादों अख्तर अयूब और गौहर अयूब की शादियां इकट्ठी की ताकि ज़्यादा खर्चा ना हो, और उसके बाद उन्होंने उन दोनों का वलीमा भी इकट्ठा कर दिया। जब उन दोनों की शादी हुई तो उस वक़्त की काबीना ने
गोहर यूब और अख्तर यूब दोनों को चांदी का एक एक टी सेट दिया। बेगम भुट्टो ने उस वक्त गोहर यूब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सिगरेट केस और अपना ज़ाती सोने का ब्रेसलेट दिया था। लेकिन बाद में ये दोनों ताइफ जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बनी तो 1988 में अयूब खान ने उन्हें ये ऐसे गिफ्ट वापस लौटा दिए। अगर सदर अयूब खान की बात करें तो उनके बच्चे साथ थे, लेकिन वो लोगों को हमेशा कहते थे कि आप अपना ख़ानदान छोटा रखें और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। तो उनके इस जवाब पर लोग मुस्कुराते थे और हंसकर कहते थे कि मुझे पता है मैं जो कह रहा हूँ वो मैं ये कर नहीं सका, लेकिन आप मेरी तकलीद ना करें। जनरल अयूब खान ख़वातीन को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे। जनरल अयूब खान का सबसे ज़्यादा गैर मामूली और पायदार इक़दाम 1961 में मुस्लिम ख़ानदानी कानून आर्डिनेंस का इतलाक़ है, जिसने ख़वातीन को ख़ास तौर पर शादी और तलाक़ के मामलात पर बाख्तियार बनाया, क्योंकि इस क़वानीन के इतलाक़ से कबल ना शादियों और ना ही तलाक़ों की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती थी, और इस तरह उन तलाक़ याफ्ता ख़वातीन के लिए संगीन मसाइल पैदा हो जाते थे जो दोबारा शादी कर लेती थीं। जनरल अयूब खान के दौर यानी 1963 में ही मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। ज़रई इस्लाहात की बात करें तो ज़रई इस्लाहात जनरल अयूब खान की समाजी और सियासी तमीर नौ के हवाले से बुनियादी अहमियत रखती थी, जिसके तहत महदूद ज़मीनें रखने की उन्होंने इजाज़त दी थी, ताकि जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं हैं इस तरह काश्तकारों के दरमियान ज़मीन और वसाइल की मसावी तकसीम को मुमकिन बनाया जा सके। अयूब खान के दौर में पाकिस्तान पर कोई कर्जा नहीं था। पाकिस्तान कर्ज लेने की बजाय देने वाले ममालिक में शामिल होता था। उस दौर में पाकिस्तान ने जर्मनी जैसे मुल्क को 120 मिलियन रुपए का तरक्याती कर्जा दिया था। अयूब खान ने जब इक़्तिदार संभाला तो डॉलर 4 रुपए का था, और 11 साल बाद जब उन्होंने अपना इक़्तिदार छोड़ा तो तब भी डॉलर जो है 4 रुपए का ही था। अयूब खान के दौर में एक चीनी वफद पाकिस्तान आया तो हबीब बैंक की इमारत देखकर हैरान रह गया, और उन्होंने उस बिल्डिंग का डिज़ाइन लिया और उन्होंने कहा कि बाद में वो जाके इस तरह की बिल्डिंग को चाइना के अंदर बनाएंगे। उस वक़्त कराची का मुकाबला लंदन और न्यूयॉर्क से किया जाता था। अयूब खान के दौर में सनती तरक्की की शरह पाकिस्तानी तारीख का रिकॉर्ड यानी कि 9% थी, और ये शरह आज के दौर में चीन की है। और अगर बात करें बेरोज़गारी की तो बेरोज़गारी की शरह 3% थी, जो पाकिस्तान की तारीख में कम तरीन है। अयूब खान ने जब इक़्तिदार संभाला तो उस वक़्त कौमी बजट GDP 2.5 थी, और उनकी इक़्तिदार में आने के बाद ये 10.5% पर पहुँच गई। ये अयूब खान का ही दौर था जब पाकिस्तान की तारीख का पहला सरप्लस बजट पेश किया गया, और उसी दौर में जनूबी कोरिया ने तेज़ रफ्तार तरक्की के लिए पाकिस्तान से उसका 5 साला मंसूबा लेकर उस पर अमल किया। और अयूब खान के दौर में ही मुल्क में बैंकों की तादाद में 5 गुना इजाफा हुआ, जबकि अकाउंट होल्डर्स की तादाद में 11 गुना इजाफा हुआ। स्टॉक एक्सचेंज ने 1.7 अरब से लेकर 5.2 अरब की छलांग लगाई। उस वक़्त स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड कंपनियों की तादाद 81 से 282 हो गई। पाकिस्तान ने पहली बार ऑटोमोबाइल, ऑयल रिफाइनरी और सीमेंट की इंडस्ट्री में कदम रखा। पाकिस्तान में गैस के मीटर नहीं होते थे और नहायत मामूली सा फिक्स बिल आता था। पाकिस्तान के कौमी अदारे अपनी तरक्की की मेराज पर थे। PIA का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में किया जाता था, और उसमें अमेरिकन सदूर तक सफ़र किया करते थे। PIA एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसके पास जेट तैयारे थे। पाकिस्तान की ट्रेनें साफ़ सुथरी होती थी, उनमें पंखे लाइटें बिल्कुल ठीक काम करती थीं, बाथरूम साफ़ होते थे, और सबसे बढ़कर ट्रेनें वक्त पर चलती थीं। पाकिस्तान की मशहूर मिल जो कि रशिया के तावन से लगी थी, यानी मैं बात कर रहा हूँ स्टील मिल की, उसके तमाम सर्वेस और फिजिबिलिटीज़ रिपोर्ट्स और सारा कागजी काम अयूब खान के दौर में ही मुकम्मल किया गया। अयूब खान के दौर में नहरों की लंबाई 56,073 किलोमीटर तक पहुंचा दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा नहरी निज़ाम रखने वाला मुल्क बन गया। और याद रहे ये बैराज और नहरें आज भी पाकिस्तान की कुल GDP में 23% हिस्सा डालती हैं। ये अयूब खान ही थे जिनके दौर में जहाज़ों के ज़रिए ज़मीनों पर यानी कि फसलों पर स्प्रे किया जाता था, जबकि महकमा प्लांट प्रोटेक्शन के ज़रिए बंजर ज़मीनों पर जहाज़ों से किक्कर के बीज गिराते थे।
किक्कर ज़मीन का सेम तौर ख़त्म करने में मदद देती है। अयूब खान पाकिस्तान के वो वाहद सदर हैं जब वो अमेरिका के दौरे पर गए तो अमेरिकी सदर ने अपनी तमाम कबीना, तीनों फ़ौज के सरबरान और अमेरिकन अवाम की बहुत बड़ी तादाद के साथ उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए। अयूब खान के दौर में 65 की जंग में पाकिस्तान ने अपने से कई गुना ताकतवर इंडिया के हमले को नाकाम बनाया। अयूब खान ने न के मगरबी पाकिस्तान पर काम किया बल्कि मशरकी पाकिस्तान पर भी उन्होंने काम किया। मशरकी पाकिस्तान में जब वो इक़्तिदार में आए तो कुल सरमायाकारी GDP का सिर्फ 6% थी। अयूब खान के दौर में ये 6% से बढ़कर 12.4% तक पहुंच गई और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया जिनमें खुलना न्यूज़ प्रिंट प्लांट, फंचगंज फर्टिलाइज़र फैक्ट्री, मशरकी पाकिस्तान का कप्तानी डैम, करनाफली रियान मिल, चिटागांग में एक बहुत बड़ी स्टील मिल की कागजी कार्रवाई भी उनके ही दौर में की गई। ढाका के अंदर इस्लामाबाद की तर्ज पर पाकिस्तान के दूसरे दारुल खिलाफा के क़याम का आगाज़ भी उन्होंने ही किया था। 1965 की जंग में रशिया ने भरपूर इंडिया का साथ दिया लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान का उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह उसने वादा किया था और इसी वजह से अयूब खान ने बांप लिया कि अमेरिका काबिल भरोसा साथी नहीं। चनाचे अयूब खान ने तुर्की का दौरा किया और तुर्क हुकूमत से कहा कि हम चीन से तल्कात बनाने जा रहे हैं, आप भी बनाएं। उसके बाद अयूब खान ने शाह ईरान से मुलाकात की और शाह ईरान से भी वही बात की, मगर शाह ईरान ने फ़ौरन अमरीकी एजेंसियों को अयूब खान के उन इरादों से मुतला कर दिया। अयूब खान अपने दौरे से वापस अभी पहुंचे नहीं थे कि उनके खिलाफ CIA की मदद से मुखालफ सियासी पार्टीज़ और मजहबी जमातों को पैसे दिए गए और उनके खिलाफ वसी मुहिम चल निकली। चूँकि इन सियासी पार्टियों और मजहबी पार्टियों को CIA ने रकम फराहम की थी और अयूब खान अमेरिका के अंगेज चले गए थे, तो फिर एक दिन आया कि इन सियासी पार्टियों के बहकाने पर अवाम ने अयूब खान को कुत्ता कह दिया। ये लफ्ज़ सुनना था तो उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी और अपने मौजूदा स्टेटस से रिटायर्ड हो गए और आपने 19 अप्रैल 1974 को वफात पाई, लेकिन अवाम आज भी उन्हें अच्छे लफ्ज़ों से याद करती है। आप भी अपनी राय का इजहार करें और कमेंट्स में अपनी जो राय है उसको लिखें कि आज के सियासतदान और अयूब खान में क्या फ़र्क है। हमेशा की तरह आखिर पर मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और आप तमाम दोस्तों से एक मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा एक दूसरा चैनल है PK मेगा कहानी के नाम से, आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।